Hey everyone, welcome back to channel. In this video, we are going to discuss the topic of recursion and stack in JavaScript. So let's start. If you're not new to programming language, you already heard the concept of recursion, and I think stack. Maybe some of you heard the stack, the execution context of a JavaScript, or may not. Let's cover it. So firstly, what is recursion? Recursion is nothing, it's just the calling itself. Okay, the recursion. For example, when you hear the people who are mental illness, they call themselves by their name and again, just like that. Recursion is sorry for the bad example. The recursion, to think of a recursion, is just like that. Your father orders your mother to do something, and your mother says to you to do something, and you said to your grandfather. Okay, your grandfather, and your grandfather asks your father to do it. This is called reaction, the chaining of a structure where each function asks itself to do the work. But here we are taking the different entities like father, mother, you, and your grandfather. But in the programming, see, for example, there is a program which is saying power 2 we are writing three times. Okay, and if we make a function of it, like function power, which takes to input one the number, and second the how what the value of 2n. Okay, so let result, and we are doing the function. So okay, so recursion in JavaScript, in not in JavaScript, in any programming language, if you have to do something more than three times, you make a function of it. Why? Because it's very easy to reduce the memory and various things. Okay, so there are two ways to achieve this. We are writing this three times. First, we are using for loop. You can understand the for loop, like there is a function power which takes to input, and we are declaring a variable result, and we are iterating a loop which going to iterate which going to give us the power of the value we are input. Okay, so let's run. See the 8 we are using. The second is recursive. Okay, so recursive, that was why I'm talking about function calling itself. Like here is a we have a function POW, and we are giving it two inputs, and if you're checking if n is equal to 1, return x, because if 1 is 1 की पावर 1 ही होती है, सबको पता है, ठीक है। और अदरवाइज क्या कर रहे हैं हम, x इंटू पावर को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं जिसकी गिवन इनपुट से है। तो यहाँ पे हमने एक करा है, इनपुट x की वैल्यू 2 है और 2 की पावर 3 8 होता है, तो एग्जाम्पल में 8 आया। ओके, प्रोग्राम समझना है तो प्रोग्राम बताता है, तो वहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली, व्हाट इज हैपनिंग देयर एंड हाउ द रिकर्शन इज वर्किंग देयर। ठीक है, तो पहला कंडीशन हमने चेक करी कि इफ जो x है इज इक्वल टू 1 है, then everything is trivial because it got the base of recursion, because it immediately produced the obvious result of power x1 equals x. Everyone know that. And others than that, if the value power is not 1, so we have to write a program. What is this doing? It's saying that the value of x multiply the power of x comma n minus 1. N is the power and minus 1, because in Java, in programming, the value of counting starts from zeros. Okay, so this is the program. To get the power of a certain value in mathematics, we write this x की power n is equal to x into x की power n minus 1. This is called a recursive step. ठीक है, so in this, here is the diagram. We can see that the how recursively call itself. Okay, so we have the function which taking if n is equal to 1, if yes then the as the value, if no then this is happening. Then again the recursive call unit goes to n is equal to 1, then again this loops is going to on and on until we get the results. Okay, now I think you get the point of recursion. Recursion is nothing, just call function calling itself is called a recursion. Okay, now let's talk about the execution context and a stack. This is the very important topic in a JavaScript, in any languages.
because knowing what is happening, how the program is running, how the program is compiling and how the output is going to print. Okay, so एग्जामिन करते हैं हम कि एक फंक्शन है हमारे पास जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस एग्जीक्यूशन रनिंग, ये सब छोड़ो, इसके लिए एक डायग्राम है। यहाँ पे एक डायग्राम देखो, इस डायग्राम में क्या है, एक प्रोग्राम है हमारे पास जिसमें हमने ले रखा है एक वेरिएबल ए लिया, उसके अंदर एक स्ट्रिंग दे रखा है, उसके बाद एक मेथड को हमने कॉल करा है, फंक्शन को कॉल करा है, उसके नीचे हमने एक फंक्शन लिखा है, उस फंक्शन के नीचे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हेलो, उसके अंदर एक फंक्शन को कॉल करा, उस फंक्शन को उस फंक्शन के अंदर लिखा, उसके अंदर एक वेरिएबल सी को डिक्लेयर करा और उसके अंदर console dot log करा है a plus b plus c. So in this diagram we are seeing the blue lines representing the global scope, the red line representing the first scope and the green line representing the second scope. So how the global scope, first scope and second scope is gaining, and the scope chain you can there the scope chain going to bottom up, again from bottom to top. So in second scope you can see there is we are having the global scope variable. In the second scope, the lowest of the program can access the variable of the top of the program. For example, the function second can access the variable a and variable b. In first scope, the function second can only access its own variable b and c, but in global scope it can only access a variable, it can't access the first scope. Okay, sorry, what I'm saying the second scope variable, it can't access the scope of the variable c is only within the function second, and the scope of the variable b within the function second and within the function third है नहीं okay, 0. Okay, we have the global for second and there is okay zero, first second and the in the second there is the c can only the c has a scope in second, the b has a scope in first and a has a global scope. Okay, I hope you got the point by seeing the diagram how the execution construct from the start is happening. Now let's do some theory. यहाँ पे हो क्या रहा है कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो हमारा एक इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कंटेन करता है फंक्शंस को, कंट्रोल फ्लो को, कंट्रोल वेरिएबल्स, करंट वेरिएबल्स को, दिस क्या होता है, जो पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन एक क्लासेस का एक इंस्टांस पे उस टाइम के पर्टिकुलर इंस्टांस पे उस टाइम की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, दिस होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एक फंक्शन जो होता है एक्जैक्टली वन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट उसके साथ एसोसिएटेड होता है, जहाँ पे क्या होता है एक फंक्शन एक नेस्टेड कॉल होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे इसने डिस्क्रिप्शन दिया है, पहला उस फंक्शन का खुद का करंट स्कोप होता है, दूसरा वो एक रिमेंबर एसोसिएट के साथ होता है जिसके पास डेटा स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्टैक कहते हैं। ये सारे के सारे नेस्टेड कॉल एग्जीक्यूट करते हैं और जब ये सारे ख़त्म हो जाते हैं तो जो आउटर फंक्शन होता है वो रिज्यूम करता है। सो कि अगर कोई बड़ा फंक्शन आता है जैसे फंक्शन ए आया, उसके अंदर हमने एक फंक्शन बी को कॉल किया तो जो फंक्शन ए है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद जो फंक्शन बी है वो रन करेगा, फंक्शन बी खत्म हो जाएगा, उसके बाद फंक्शन ए दोबारा रन करेगा और फंक्शन ए दोबारा रन करेगा तो उसके नीचे एक फंक्शन सी आया, फंक्शन सी ए दोबारा रुक जाएगा, सी रन करेगा, सी के अंदर डी है तो डी रन करेगा, उसके बाद वापस ए रिज्यूम होगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तुम समझ गए होगे आई होप। ओके, तो यहाँ पे वही वाला एग्जांपल है जो पावर ली थी, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने 2 और 3, तो कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ इसका, पहले x की वैल्यू 2 है एंड हमारे पास 3 है एट लाइन 1, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम रन कर रहा है वो कैसे कर रहा है, अगर स्टार्ट हुआ द कंडीशन n इज इक्वल टू 1 इज फॉल्स, तो फ्लो कंटिन्यूस करेगा ब्रांच को अगर 1 है। ओके, आई थिंक यहाँ तक तो तुम्हें समझ आ गया होगा। ये एग्जांपल करते हैं रिकर्सिव ट्रावर्सल। इसमें क्या होता है कि एक एप्लीकेशन होती है जो रिकर्सिव ट्रावर्सल करती है, एक कंपनी है हमारे पास जिसके पास स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड है स्टैक में। ओके, तो यहाँ पे एक कंपनी है, वहाँ के इसके कुछ एम्प्लॉयज़ का डेटा है हमारे पास जिसके अंदर सेल्स है, डेवलपमेंट है और इंटरनल्स के डिपार्टमेंट है और इनके एम्प्लॉयज़ है पीटर, एलिस, जॉन, जैक। ओके,
तो यहाँ पे ये हमसे क्या कह रहा है, एक डिपार्टमेंट के अंदर एक एरे ऑफ स्टाफ है और सेल्स में 2 एम्प्लॉयज़ है, और अलग एक डिपार्टमेंट को अगर स्प्लिट करते हैं उसके सब डिपार्टमेंट में, जैसे डेवलपमेंट और साइट्स के हैं, ठीक है, उनके भी अपने अपने स्टाफ हैं। तो अगर हम चाहें, अगर ऐसा हो, अगर वो सब डिपार्टमेंट ग्रो करे या डिवाइड हो सब डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो जो साइट्स के, अगर एक एग्जांपल है जैसे साइट्स के डिपार्टमेंट इन फ्यूचर में अगर वो उसको हम डिवाइड करते साइट ए साइट बी में, तो जो स्प्लिट होगा इवन मोर होगा, कैन स्प्लिट इवन मोर, वो लोग और भी हो सकते हैं साइट ए साइट बी से साइट सी साइट डी, ठीक है। तो इसकी हम सोच नहीं सकते ना कि वो डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। तो इस चीज़ों के लिए क्या कहते हैं, एक फंक्शन करते हैं जो क्या करता है, सम ऑफ सैलरीज करता है ना। लेट्स से वी वांट, अगर हम एक, ठीक है, ये एक केसेस है कि वो एक साइड से वो कितने में भी डिवाइड हो सकता है, तो हमने एक फंक्शन बनाने की सोचते हैं जो सम ऑफ सैलरीज निकालेगा, ठीक है। और ये कैसे कर सकते हैं, एक आइटरेटिव अप्रोच लेंगे जो इजी नहीं होगी, उसके लिए हम एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे जो भी इजी नहीं होगा। उसके लिए आइडिया क्या होगा, एक फोर लूप का यूज करेंगे, कंपनी के नेस्टेड सब लूप यूज करेंगे, फर्स्ट लेवल के डिपार्टमेंट, सेकेंड लेवल के डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट्स, ठीक है, उन सब के सब जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम 3-4 लूप्स वगैरह का यूज करेंगे जो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कोड हमारा मेसी हो जाएगा। और इसी चीज को अगर हम रिकर्शन से करें तो क्या कर सकते हैं, तो हम एक रिकर्शन से करेंगे तो ये एक सिंपल होगा, और एरे ऑफ पीपल जो होंगे ना उनकी सैलरीज को हम सिंपल लूप से निकाल सकते हैं, या फिर एक ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं जिसके अंदर एंड सब डिपार्टमेंट्स होंगे और एंड रिकर्सिव कॉल होंगे, जिससे हम सम फॉर ईच ऑफ द सब डिपार्टमेंट्स और उन सबको निकाल सकते हैं। तो 2 केसेस है हमारे पास। पहला केस क्या है कि बेस रिकर्सिव होगा जिसमें ट्राइवल केस होगा जब हमें एक एरे मिलेगा एम्प्लॉयज का। दूसरा केस क्या होगा, व्हेन वी गेट द ऑब्जेक्ट रिकर्सिव अ कॉम्प्लेक्स टास्क स्प्लिट सब टास्क फॉर स्मॉलर डिपार्टमेंट। तो पहला एक कंपनी है, उसका डेटा यहाँ पे है, तो हमने एक फंक्शन लिखा है। क्या है ये फंक्शन, एक सम सैलरीज ली है, उसके अंदर हम डिपार्टमेंट की वैल्यू डालते हैं। अगर जो एरे है वो एरे है, एरे इज एरे, केस पहला है, तो डिपार्टमेंट को रिड्यूस मेथड का यूज करा जिसके अंदर एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय और उसकी करंट सैलरी को सम करेंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। दूसरी कंडीशन में क्या होती है, अगर सम 0 है तो जो सब डिपार्टमेंट की वैल्यूज होगी उसका हम सम निकालेंगे और उसको रिकर्सिवली कॉल करते रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद सम सैलरीज को हम अलग कंसोल करवा देंगे, आउटपुट दे देंगे। Okay, so you can see that we are getting the output 7700। तो ये कोड शॉर्ट है, इजी है, और मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। इस फंक्शन, इस प्रोग्राम में कुछ था नहीं, एक फंक्शन था जिसके अंदर वो चेक कर रहा था अगर एरे है तो एक रिड्यूस मेथड यूज कर रहा है जिसके अंदर हम सम को रिटर्न कर रहे हैं। अगर वो नहीं होता है तो हम एक सम वेरिएबल की वैल्यू 0 रखते हैं और एक वो लूप लगाते हैं डिपार्टमेंट की वैल्यूज के ऊपर वर्क करता है, और उसमें जो सम ऑफ सैलरीज होती है वो सब डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उसको रिटर्न कर देता है। ओके, सो एक डायग्राम है इसी प्रोग्राम का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपनी है, उसके डिपार्टमेंट्स है, उस डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज को अलग अलग कर रखा, और उस डिपार्टमेंट की जो उसको अलग अलग साइट्स में भी डिवाइड कर रखा है। तो इन सब का सम अलग अलग निकालने की जगह हम रिकर्सिव फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। इससे हमारी प्रोग्राम की इफिशिएंसी अच्छी होगी, जो प्रोग्राम होगा रीयूजेबल होगा और काफी इजी टू मेंटेन होगा, ठीक है। फिर आता है रिकर्सिव स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। रिकर्सिव स्ट्रक्चर क्या होता है, रिकर्सिव स्ट्रक्चर के अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर होता है जो रेप्लिकेट करता है इटसेल्फ और उसके पार्ट्स को। जैसा कि हमने देखा एग्जांपल के ऊपर, ये कंपनी के डिपार्टमेंट में वो एक एरे ऑफ पीपल होगी, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आती है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में हर चीज ऑब्जेक्ट होती है, एरे भी एक ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन एरे को हम एस में अलग देखते हैं, लेकिन इन रियलिटी जावास्क्रिप्ट के अंदर एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। ओके, फिर बात करते हैं कि अगर तुम वेब डेवलपर हो तो तुमने कुछ प्रोजेक्ट करेंगे तो तुम्हें HTML और XML के बारे में पता होगा। तो जो HTML डॉक्यूमेंट के टैग होते हैं उसके अंदर लिस्ट होते हैं, टिक पीसेस होते हैं, कमेंट, अदर बहुत सारे टैग होते हैं, ठीक है। वो भी एक रिकर्सिव डेफिनेशन होती है कि जैसे कि अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक काम करते हैं, एक लिंक लिस्ट बनाते हैं। लिंक लिस्ट अगर तुम लोगों ने पढ़ी है तो तुम्हें ये काफ़ी अच्छे से पता होगा, स्टैक में लिंक लिस्ट बहुत यूज़ होता है। ये जो प्रोग्राम का रेफरेंस होता है कि दूसरे फंक्शन का रेफरेंस दूसरे वैल्यू का रेफरेंस रखता है। ओके,
लिंक लिस्ट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। लिंक लिस्ट अगर जिसने नहीं पता, लिंक लिस्ट कुछ नहीं होता है, इसके अंदर एक पॉइंटर वैल्यू होती है। जैसे ब्राउजर के अंदर यहाँ पे ये पॉइंटर वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं दूसरी साइट खोलूँ तो यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर्स आ गया। अगर दोबारा ये जो पॉइंटर वैल्यू है, ये जो है यहाँ पे पॉइंटर का यूज हुआ है, इसी को लिंक लिस्ट कहते हैं। लिंक लिस्ट कुछ नहीं होता है, लिंक लिस्ट एक सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक वैल्यू दूसरे वैल्यू को पॉइंट करती है। ओके, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा तो उसमें एक मेमोरी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में लिंक लिस्ट का यूज करते हैं, ताकि इससे क्या होता है, जो वैल्यू ऑफ डेटा को सेव करते हैं मेमोरी के अंदर, तो हम पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करता है कोई भी चीज़, तो उस ऑक्यूपाई स्पेस में वेस्टेज को कम करने के लिए हम लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू को अलॉट नहीं करते, यहाँ पे हम वैल्यू के एड्रेस को अलॉट करते हैं, जिससे कि हम जितनी वैल्यू चाहिए उसमें हम लिंक लिस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, जैसे कि एरे हमने साइज 10 का बना दिया और उसमें हमने सिर्फ 5 वैल्यूज को यूज करा, तो जो बची हुई 5 थी वो वेस्ट हो जाएगी। बट लिंक लिस्ट में क्या होगा, ये पॉइंट करता है वैल्यू एड्रेस को जहाँ पे डेटा हम स्टोर कर रखा है, तो उस चीज के लिए काफी अच्छा होता है। तो दोनों के अपने यूज केसेस होते हैं, तुम समझ जाओगे अगर तुम इन फ्यूचर अभी और पढ़ोगे उनके बारे में। तो थैंक यू फॉर दिस गाइस, आई एम नॉट in next video we are going to cover link list. I hope you get what I'm trying to say. Let's next video let's cover the link list in this video. See, this is the graphical representation of list. We are having a value 1 which is pointing to the next value, and the next value is pointing to the third value, then next and next. At the last value points to null. Okay, so it's just nothing in linked list you can contain in C programming. You have already listened. I don't know.